नमस्ते। आज हम यूनिट 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पार्ट 3 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सैटरडे 20 जून 1942 यानी शनिवार 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी। Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jack, who have stocked their entire holiday savings on their bet. हमारी पूरी क्लास डर के मारे कांप रही है। इसकी वजह जाहिर है, वह आने वाली मीटिंग है जिसमें टीचर यह तय करेंगे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और किसे इसी क्लास में रोक लिया जाएगा। आधी क्लास तो इस पर शर्त लगा रही है। जीएन और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों सीएन और जाक को देखकर खूब हंसते हैं। उन्होंने अपनी छुट्टियों की पूरी जमा पूंजी इस शर्त पर लगा दी है। From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. सुबह से रात तक बस यही चलता रहता है। तुम पास हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। हाँ, तुम हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। जी की मिन्नत भरी नजरें और मेरे गुस्से भरे ताने भी उन्हें शांत नहीं कर पाते। अगर मुझसे पूछो तो क्लास में इतने सारे बेवकूफ बच्चे हैं कि करीब 1/4 बच्चों को तो इसी क्लास में रोक लेना चाहिए। लेकिन टीचर लोग दुनिया के सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं। I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about it's maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. मुझे अपनी सहेलियों और खुद के बारे में ज्यादा चिंता नहीं है। हम तो पास हो ही जाएंगे। बस एक ही विषय है जिसके बारे में मुझे पक्का यकीन नहीं है, गणित। खैर, हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। तब तक हम एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि हिम्मत मत हारो। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. मेरे अपने सभी टीचरों के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। वे कुल 9 हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर किसिंग, जो गणित पढ़ाते हैं और थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, मुझसे काफी समय से नाराज थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। कई बार चेतावनी देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। An essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox. What can you write about that? I'd worried about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. विषय था एक बातूनी पर निबंध। एक बातूनी, इस पर कोई क्या लिख सकता है? मैंने तय किया कि इस बारे में बाद में सोचूंगी। मैंने अपनी नोटबुक में शीर्षक लिख लिया, उसे अपने बैग में रख दिया और चुप रहने की कोशिश की। That evening, after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. उस शाम जब मैंने अपना बाकी सारा होमवर्क खत्म कर लिया तो निबंध वाला नोट मेरी नजर में आया। मैं अपने फाउंटेन पेन की नोक चबाते हुए उस विषय के बारे में सोचने लगी। कोई भी बस बातें बनाकर शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी जगहें छोड़ सकता था, लेकिन असली चुनौती तो यह थी कि बातें करने की जरूरत को साबित करने के लिए मजबूत तर्क कैसे दिए जाएं।
I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. मैं सोचती रही और अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने वे 3 पन्ने लिख डाले जो मिस्टर किसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे और मैं संतुष्ट थी। मैंने तर्क दिया कि बातें करना तो एक विद्यार्थी का स्वभाव होता है और मैं इसे काबू में रखने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं इस आदत से कभी पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकूंगी क्योंकि मेरी माँ भी मेरी ही तरह बल्कि शायद मुझसे भी ज्यादा बातें करती है और जो आदतें हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलती है उन्हें हम ज्यादा बदल नहीं सकते। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मिस्टर किसिंग को मेरे तर्कों पर खूब हंसी आई, लेकिन जब अगले पीरियड में भी मैंने बातें करना जारी रखा तो उन्होंने मुझे एक और निबंध लिखने को दे दिया। इस बार विषय था एक ऐसी बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। मैंने वह निबंध भी जमा कर दिया और उसके बाद 2 पूरे पीरियड तक मिस्टर किसिंग को मुझसे शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिला। However, during the third lesson, he would finally had enough. And Frank, as punishment for talking in class, wrote an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. लेकिन तीसरे पीरियड में उनका सब्र जवाब दे गया। एनी फ्रैंक, क्लास में बातें करने की सजा के तौर पर तुम एक निबंध लिखोगी जिसका शीर्षक होगा क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोड। I had to laugh too, though I'd nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. क्लास में शोर मच गया, मुझे भी हंसी आ गई। हालांकि मैंने बकवास करने वालों के टॉपिक पर अपनी समझ लगभग खत्म कर दी थी। अब कुछ और सोचने का समय था, कुछ ओरिजिनल। My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. मेरी दोस्त सैने, जो कविता लिखने में अच्छी है, ने मुझे शुरू से आखिरी तक कविता में निबंध लिखने में मदद करने की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग इस अजीब विषय पर मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं यह पक्का करना चाहती थी कि मजाक उन्हीं पर हो। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. मैंने अपनी कविता पूरी की और यह बहुत सुंदर थी। यह एक माँ बतख और एक पिता हंस के बारे में थी जिनके 3 बतख के बच्चे थे जिन्हें पिता ने काटकर मार डाला था क्योंकि वे बहुत ज्यादा टर्रा रहे थे। किस्मत से मिस्टर किसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes these days. उन्होंने क्लास में कविता पढ़ी, अपने कमेंट्स भी जोड़े और कई दूसरी क्लासों में भी पढ़ी। तब से मुझे बात करने की इजाजत है और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया है। इसके उलट मिस्टर किसिंग इन दिनों हमेशा मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी, यानी आपकी एनी। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट अडॉप्टेशन। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया थोड़े बदलाव के साथ। ओके।